दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 के इंग्लिश बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम होगा द राजाज ड्रीम। तो चलिए सबसे पहले B1 देख लेते हैं, थिंक एंड टेन वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, व्हाट कंप्लेंट डिड द कार्टियर्स मेक टू ऋषा कृष्ण चंद्र। तो इसका आंसर होगा हमारा गोपाल loved to make everyone a fool was their complaint. Question number 2, how did Krishna Chandra decide to amuse himself। तो इसका आंसर हो जाएगा by making Gopal a fool to amuse himself। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। What did the Raja tell Gopal। आंसर हो जाएगा a story of his dream। क्वेश्चन नंबर 4, what were the two pools filled with in Raja's dream। तो इसका आंसर हो जाएगा one pool was filled with खीर, the other with milk। क्वेश्चन नंबर 5, in which pool did Gopal fall। इसका आंसर हो जाएगा in the pool of rotten dung। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। whose dream finished earlier। तो इसका आंसर हो जाएगा Raja's dream। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Who was licking whom in Gopal's dream। इसका आंसर हो जाएगा राजा एंड गोपाल वर licking each other। बी का 2 नंबर देख लीजिए, थिंक एंड राइट वाला। तो B2 1 हो जाएगा राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, गोपाल वॉज अ ग्रेट फूल। तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राजा एक्चुअली हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम। ये भी फॉल्स। 3 नंबर देख लीजिए, राजा फेल इन द पूल फिल्ड विद मिल्क। ट्रू। 4 नंबर देख लीजिए, द कॉर्टियर्स मोक्ड एट गोपाल ऑन हियरिंग राजा's ड्रीम। ये ट्रू हो जाएगा। नंबर 5, राजा पनिश्ड द कॉर्टियर्स फॉर लाफिंग एट हिम। फॉल्स हो जाएगा ये। चलिए बी का 2 अब देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड गोपाल लव डूइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा मेक एवरीवन अपीयर लाइक अ फूल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द किंग थिंक ऑन हियरिंग द कॉर्टियर्स कंप्लेंट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बेटिंग गोपाल। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द पूल लाइक इन द विच द किंग फेल लुक लाइक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पूल ऑफ खीर। B2 का 3 नंबर देख लीजिए अब। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 70 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंड टू द पीपल हु ट्राइड टू गेट देयर बैक एट गोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द पीपल हु ट्राइड टू गेट देयर बैक्स एट गोपाल वर सेल्फ मेड फूल्स बाय द जेस्टर गोपाल। There was no one in the court who did not try to make Gopal a fool, but in the end they looked like utter idiots। Question number 2, what was the king's dream? Describe। तो इसका आंसर हो जाएगा Die King said that last night he had a strange dream. In his dream, Gopal and he were going for a walk. Suddenly they reached to a place having two pools. One pool was filled with kheer and the other with smelly dung. He himself fell in the kheer made out of rich milk and Gopal fell into the pool of muck। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, What did Gopal say on hearing the king's dream। तो इसका आंसर हो जाएगा Gopal calmly said that he also had seen the same dream. The king's dream had ended earlier, while his dreams continued a bit longer. Further in his dream he saw that they both came out of their pools. Then both of them licked each other as to clean each other। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, स्केच द कैरेक्टर ऑफ गोपाल द जेस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा द जेस्टर गोपाल वॉज एन इंटेलिजेंट मैन। He was pleased to crack joke on others. He liked very much to get a person's back. But when the other courtiers tried to make the same, they would find themselves if Gopal's hand
becoming were idiots. Even the king could not get at his back. Gopal was a person of great wit. Question number 5. Can you guess the king's feeling at Gopal's reply? What would you do if someone's replied you in that manner? इसका आंसर हो जाएगा हमारा The king might have been greatly surprised at Gopal's reply. He wanted to make Gopal a fool, but instead Gopal had made him a fool, and in front of all the courtiers, the king might have gone fired with anger, and he could have badly punished Gopal. But as he was that day in good mood, he pardoned Gopal, and instead of punishing him, praised him. If someone would have replied to me that manner, I would become angry on the person. I would cut my relation with him. I would stop talking to him. चलिए क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं वर्ड स्टडी। तो सी का 1 देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ से उठा करके यहाँ पर भरना है ये सारे में, यहाँ 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 यहाँ। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। 1 में भरना है जेस्टर, 2 में भरना है ड्रीम, 3 में कॉर्टियर्स, 4 में लॉन्गर, 5 में क्लीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी का 2, फाइंड आउट फ्रॉम द स्टोरी द वर्ड विच आर ऑपोजिट्स, यानी कि एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। इसका विपरीतार्थक सब यहाँ पर खोजना है आपको बुकमार्क से। तो 1 का देख लीजिए, यहाँ पर अप्रिशिएट का हो जाएगा अनअप्रिशिएटेड, हेटेड का हो जाएगा लव्ड, नेवर का हो जाएगा ऑलवेज, थिन का हो जाएगा थिक, विप का लाफ, बिगैन का एंडेड, पुश्ड का पुल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी के 3 में मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पर दोस्तों नहीं दिया गया है, माफ़ करिएगा, लेकिन आप अपने बुक में खोज करके आप अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए अब ग्रामर में आते हैं। तो यहाँ पर डी का 1 कह रहा है डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स क्या होता है वह यहाँ पर आप देख लीजिए। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द किंग वॉज इन अ गुड मूड एंड डिड नॉट माइंड his legs being pulled a little. Note the underlined words in the given sentences. Here the words the before king refers to a particular king, like Raja Krishan Chandra. Similarly, the word his before legs refers to the legs of that very king. Words like a or an, the, this, that, some, etc. are called determiners, and they are used before a noun or a noun phrase to define or limit its meaning. In a noun phrase, only one determiner is permitted. There are many determiners in English. Here is a list of some of them. आर्टिकल्स में एंड द, पोसेसिव प्रोनाउंस में माई, हिज, योर, हर, देयर, आवर, इट्स, क्वांटिफायर्स में हो जाएगा सम, मेनी, एटसेट्रा, इंट्रोगेटिव्स में हो जाएगा व्हाट, विच, एटसेट्रा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव्स में हो जाएगा ईच, एवरी, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स में हो जाएगा दिस, दैट, एटसेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। D1 का 1 में देख लीजिए। Encircle determiners in the story the Raja's dream। तो इसका आंसर हो जाएगा the determiners used in the story the Raja's dream, his courtiers, that Gopal a fool, the court, the Raja a single, the jester, that you a place, you dream, his legs। चलिए अब D1 का 2 में आते हैं। Now encircle the determiners in the following sentences। नंबर 1 यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें से डिटरमाइनर्स को फाइंड करना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, सारे का दिया गया है। यहाँ पर 1 का, 2 का, 3 का यहाँ पर गलती से 11-12 लिखाएगा, लेकिन यहाँ पर 1, 2, 3 होगा। इसी प्रकार से पूरे 9 तक का सोल्यूशन दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी क्वेश्चन सिर्फ 9 तक ही है, और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर 10 नहीं दिया गया है। यहाँ पर आंसर है, और यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का आंसर दिया गया है, और बाकी यहाँ पर 4, 5, 6 करके ऐसे तक 9 तक का दिया गया आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब D1 का 3 में यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी का यूज कैसे होता है यहाँ पर देख लीजिएगा। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ईच बॉय इज इंटेलिजेंट इंडिविजुअली, यहाँ पर कहा गया है। एवरी बॉय इज इंटेलिजेंट, तो सभी को कहा गया, यानी कि ऑल।
We use each and every before singular countable nouns. We use each before a singular countable noun when we talk about two or more people or things separately as individuals. We use every when we talk about the three और more people. more नहीं यहाँ पर more होगा more, यहाँ पर more people और things together as a group. चलिए आप समझ गए होंगे उम्मीद है ऐसा। नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, इसका हिंदी हम बता देते हैं क्या कह रहा है। ईच और एवरी का उपयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। ईच का उपयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, जबकि यहाँ फिर उसके बाद कह रहा है कि टू और मोर पीपल और थिंग्स को सेपरेट करने के लिए या इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर ईच का उपयोग किया जाता है, जबकि एवरी का उपयोग कहाँ किया जाता है, थ्री या फिर उससे ज़्यादा पीपल यानी तीन या उससे भी जैसे कि 4, 5, 6 यहाँ पर उससे ज़्यादा पीपल के लिए यहाँ पर एवरी का उपयोग किया जाता है, या फिर पूरे ग्रुप के लिए एवरी का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में ईच बॉय एंड girl was given a prize. Each of the girls was allowed to speak for 2 minutes. Every boy was present in the class. All boys were present in the class. यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर each जो होता है वो हमारा एक तरह से सिंगुलर होता है और जो every होता है वो हमारा हो जाता है एक तरह से यहाँ पर प्लूरल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। D1 का 4 में मेक 2 sentences with each and every। तो इसका आंसर देख लीजिए। ईच से बनेगा हमारा पहला सेंटेंस यहाँ पर ईच मैन इज मॉर्टल। नंबर 2 ईच ऑफ यू विल बी पनिश्ड। एवरी से देख लीजिए पहला सेंटेंस क्या कह रहा है हमारा, एवरी पर्सन इज गॉड्स चाइल्ड। और नंबर 2 में देख लीजिए एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। D1 का 5 देख लीजिए अब पिक आउट द डिटरमाइनर्स इन द फॉलोइंग पैसेजेस। यहाँ पर पैसेज आपको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों, फिर उसके बाद डिटरमाइनर्स को खोजना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम D2 के पंक्चुएशन मार्क्स में, यानी पंक्चुएशन मार्क्स यहाँ पर आपको पढ़ना है अब। तो देखिए वी यूज़ अ वैरायटी ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स सच एज फुल स्टॉप और पीरियड, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट्स एटसेट्रा इन आवर राइटिंग टू सेपरेट सेंटेंसेस, फ्रेजेस एटसेट्रा एंड टू क्लैरिफाई दियर मीनिंग। तो एपॉस्ट्रोफी का कैसे प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर लिखा गया है। Number 1 an apostrophe is used for number A to form contractions by showing the numbers or letters that have been left out, like यहाँ पर 88 मीन्स इसका हो जाएगा हमारा 9088। आई एम का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पर आई एम, तो इसके लिए अपॉस्ट्रोफी का उपयोग किया जाता है, वो दिया गया है। फिर यहाँ पर बी आर के लिए यहाँ पर ऐसे बी आर लिखा जाता है, फिर ही विल का हिल हो जाता है, देवुड का देवुड हो जाएगा, फिर यहाँ पर देन डो नॉट का यहाँ पर डोंट लिखा जाता है, आई हैव का आईव हो जाता है ऐसे, तो उसमें किया जाता है। फिर नंबर बी में देख लीजिए टू फॉर्म द पोसेसिव ऑफ अ नाउन एड्स टू अ सिंगल नाउन और नेम, अंकल्स शॉप, अंशुस फ्रेंड, कैट्स टेल यानी कि बिल्ली की पूंछ, अनुस कार यानी कि अनु की कार, तो उसके लिए यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद एड टू अ सिंगुलर नाउन दैट एंड्स इन एस, एक्ट्रेस जैसे कि एक्ट्रेसेस, रोल, प्रिंसेसेस, फ्रेंड, राइनोसॉर्स स्किन, एज टू अदर प्लूरल नाउन्स, चिल्ड्रंस टॉय, women's shoe, men's shirts, and to a person's office or shop, I will buy the medicine at the chemist's, I'll be visiting Anil's, तो उसके लिए भी किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। add only after the second name, Jack and Jill spell, Aslant and Anu's school। जब दो नाम हो तो यहाँ पर दूसरे वाले में सिर्फ उपयोग किया जाता है, वो यहाँ पर कह रहा है। नंबर सी में आइए टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ एब्रीविएशंस, उसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए उदाहरण, मैनी डॉक्टर्स, मैनी सीएम्स, मैनी पीएचडीज। नंबर 2 एन अपॉस्ट्रोफी इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द वर्ड व्हेन द वर्ड इज प्लूरल एंड एंड्स इन एस, स्टूडेंट्स बैग्स, बुक्स कवर्स, यानी कि जब पहले से एस लगा हो तो उसके बाद में सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का उपयोग करके छोड़ देते हैं, बाद में एस नहीं लिखना होता है, वो कह रहा है। चलिए नंबर 3 में बातें हैं। फॉर द प्लूरल ऑफ नंबर और लेटर, उसके लिए भी किया जाता है। तो योर आइज, योर सीज,
योर फाइव्स आर टू बिग, ऐसे करके बोला जाता है। अब चलिए अब कॉलन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नंबर 1, a colon is used before a list and usually after as follow। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एग्जाम्पल, दिस बॉक्स कंटेन्स द फॉलोइंग आइटम्स। यहाँ पर दिया गया है फिर कॉलन, फिर उसके बाद बैंडेजेस, प्लास्टर्स, लोशन, मेडिसिन्स एंड अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो यहाँ पर एक तरह से लिस्ट को सूचित करने के लिए यहाँ पर कॉलन का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद इसका दूसरा उपयोग क्या है, इट इज़ यूज टू सेपरेट द आवर फ्रॉम द मिनट्स व्हेन टेलिंग टाइम, तो उसके लिए किया जाता है। फिर नंबर 3 में आते हैं, इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेड मटेरियल। तो कोटेड मटेरियल के लिए जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, द हेडमास्टर ऑफ आवर स्कूल ऑफन यूज टू टेल अस दिस कोटेशन, राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर उसके लिए किया जाता है। फिर उसके बाद सेमीकोलन का यूज़ देख लीजिए। नंबर 1, टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और अ सीरीज ऑफ आइटम विच आर क्लोजली कनेक्टेड इन मीनिंग। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ही गिव्स अप स्मोकिंग, ऑब्वियसली ही फियर्स कॉन्ट्रैक्टिंग वन ऑफ द स्मोकिंग रिलेटेड डिसीज़। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, अगर नहीं भी समझे तो चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप हिंदी में अगर पढ़ते हैं, यहाँ पर हिंदी व्याकरण में, तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। अंग्रेजी तो हम समझ सकते हैं, बिहार बोर्ड के बच्चों का थोड़ा सा कमज़ोर होता ही है। चलिए सेमीकोलन आप समझ गए होंगे उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैफन का उपयोग कैसे किया जाता है वो आप देख लीजिए, टू जॉइन टू वर्ड्स और मोर टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स, यानी कंपाउंड वर्ड्स को फॉर्म करने के लिए यहाँ पर किया जाता है हैफन का उपयोग, जैसे कि गुड लकिंग, प्रो इंडियन, 41, डॉटर इन लॉ। चलिए इसी प्रकार से यहाँ पर और दिया गया है। नंबर 2 में देख लीजिए एक बार, इट इज़ यूज्ड फॉर पीरियड्स ऑफ टाइम व्हेन यू माइट अदरवाइज यूज टू। एग्जाम्पल, द ईयर्स 200 यहाँ पर 2009 टू 2011 और सितंबर टू दिसंबर, ऐसे करके यहाँ पर जो पीरियड ऑफ टाइम बताया जाता है तो उसमें किया जाता है हैफन का उपयोग। फिर उसके बाद टू लिंक टू कनेक्टेड वर्ड्स, उसमें किया जाता है, जैसे पटना टू दिल्ली। फिर नंबर 4, टू ऐड एम्फेसिस टू मेक इट ड्रामेटिक, तो उसमें किया जाता है। फिर देखिए यहाँ पर डैश का उपयोग यहाँ पर दिया गया है। नंबर 1, अ डैश इज समटाइम यूज इंस्टेड ऑफ अ कॉलन और सेमी कॉलन। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप ग्रामर में जब पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा। यहाँ पर तो बुक में थोड़ा सा ऊपर से दिया गया है और उतने बढ़िया तरीक़े से यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन जब ग्रामर आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो आप एक बार देख लीजिए, सिर्फ ऊपर आपको पढ़ लेना है, जितना भी समझ में आए उतना अच्छा है, नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं है। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी ले लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर जो उपयुक्त यहाँ पर जो भी आपको पंक्चुएशन मार्क लगता है उसका उपयोग करना है। तो यहाँ पर इतने सारे 18 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका आंसर आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या क्या पंक्चुएशन मार्क लगेगा एंड में, यहाँ पर आप देख लीजिए, आप बना लीजिएगा उसी तरह से। देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन सा लगा है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर समाप्त होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।